Motley means when you add different colors, all right, into a particular frame or a picture, a beautiful scene or a beautiful picture comes out, right? So the Motley method is the same, all right. When different colorful pictures or different colors come together, a beautiful picture is made, and that is why I have given the name to my method, that is Motley method. After including three-dimensional animated videos, or say the teaching models, all right, also the activity based learning, you can see maximum students were able to identify and explain. But what about the 16 students, like 11% student? I wanted to reach out to every child. We have 70 students per class, and it is very important to reach out every child. So for that, I had activity based learning included in my classroom, and almost every child could understand, every child could even identify, explain properly, all right. Very few students were able to, were not able to explain it, but even with, again, trial and error method, they were also reached out. Now this was the clay model of kidney which I had included in my classroom, all right. So the clay model is developed by me using different colors of clay, and if you can just dissect it, you will see the internal organs of kidneys. Like this, I have made of heart, I've made of kidney, and other organs also. Here I have included, now in case of Motley method, activity based learning, I have included say two methods here in one particular uh, this topic. Now here I wanted to show the working of kidney, but I added chemistry also in this. So this is what Motley method say, that more, the one topic can be taught in more than one way, all right. And Motley 2 method means when you include one particular teaching aid and you teach more than one topic, that becomes Motley, advanced Motley method. So this is the advanced Motley method, which here I have shown titration also. Here I have shown neutralization reaction in chemistry also. So excretory system is also explained, and neutralization reaction is also explained at the same time. So urine formation, a child will come to know. Along with that, neutralization also, a child will come to know. So first, instead of going for just diagrams, all right, first I included the dissection. Let me tell you, I am a vegetarian and I am a teacher with lots of passion. But I had to go to the butcher shop. I bought a goat, a mammal's heart to the class, and I did this activity myself. I also have a video, and later on, if you just allow me, not here, not right now, but later after the session is over, I can play the video and show you how the dissection was carried out. So I also conducted dissection of mammal's heart. After that, I am, an artistic person. You can call me a kalakar as well. I love to do embroidery. So I have embroidered my lab coat. And here, when you have, say, biology class or any science class you have, and you go with this lab coat on, I think this is the most catchy thing a teacher can do in the biology class. So this is something which I usually don't forget in my class. This is the dissection of the clay model of heart, and very systematically you can show the oxygenated blood and the oxygenated blood the mechanism of heart and working of heart, and everything you can show in a very systematic manner, step by step. You can just dissect and you can show the students. The benefit of this, the benefit of this particular model is you can dismantle and you can rejoin, and you can show it as many times you want. Now, what is the effect and impact of this teaching methodology? This is very important. What you are teaching, aap kya padha rahe ho, that should reach out the student, and it should have some impact on the student. The application based learning technique
is very, very important. So student will understand the application. If you want to teach the working of heart, you have to tell them. It is not there in the textbook. You have to tell them about high blood pressure. You have to tell them about what happens when a person has high sugar level and high blood pressure. All this you need to discuss. So application based teaching needs to be included, and according to new education policy, let me tell you, I started doing it before new education policy was inculcated or it was discussed upon. And I started when in Mumbai, ALP program for weak students, the students who had scored weaker grade. That ALP program had started, and I initiated this particular research at that time. Understand the concept clearly. Conceptual knowledge must be inculcated to the students. All right, like pulse, blood pressure, high sugar level, etc. This has to be taught. Education implications that I already discussed. Many concepts at a time can be taught with Motley method. I give you one very beautiful example about chemistry and biology teaching taught together. All right, you can also plan, you can include other teachers also into the loop, and you can plan a very good activity here. All right, any difficult content can be represented in a very easy manner. Time management also can be learned with this. Yes, I am a science teacher, but I love art. All right, and I love theater first of all. So yes, ma'am, your time please, is sir, over. just Your time is a few over. seconds. I'm almost done. Okay. Just a few seconds. Okay. So I'm an art teacher, and according to new education policy, and also according to Motley method, you can also include art or integrate art in your learning. So this is the folk art of Chhattisgarh, Pandwani, and I love performing it. Trust me, on stage it is like a fire, and I taught the same to my student also. Now, why I'm telling this to you? This is a very interesting thing about it. Recently, we had mono acting topic, the interaction with the idol or with your idol. So I had taken Tijan Bai. Sorry, I had taken Tijan Bai and I had performed it, and I included science also with this. Like how with this particular art, I can teach science. So this is something really interesting, art integrated learning. Conclusion. Now, Motley method is for every age group. It's not just because I teach in secondary section, I will always think about them. But definitely, you can include this in primary. You can include in college at college level. Also, knowledge outside the textbook must be provided, and Motley method, the research which I have done, caters to it. The teacher is a facilitator. We are not the kings and queens who would rule the classroom. We must remember this. Supplement their instruction in the classroom, all right, and in a very systematic way using the teaching aids. The concept need to be reached out to the students. These are the references which I've been working upon. Such research work is not mentioned in the reference, and I've been using these references since I did my B.Ed. So these references, I did a lot of literature review on it, and then I came upon to the conclusion that I should come out with Motley method, like multiple approach method. Thank you so much. Science is the key to all the solution, and the problems can be resolved using science and maths. Thank you so much. Next participant, नीलम जयवंत तावड़े. ये मैम आप आए थे पहले और आपका पीडीएफ शायद शेयर नहीं हो रहा था, अभी सेटिंग हुआ मैम? हाँ सर, मेरा पीडीएफ शायद शेयर हो चुका है, तो जिनके पास हुआ है तो वो अगर मुझे हेल्प कर दे तो। ये ठाकुर सर शेयर करना है इनका? जी जी जी, ये मैम आपका मैथमेटिक्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन यही था टॉपिक? यस सर जी जी। एक बार पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको डिसेबल को ये करो, इनेबल करो, सेटिंग में जाके करना पड़ेगा। राजेश जी सर आप को-होस्ट हैं, आप कर सकते हैं सर, आपके पास वो वहां से व्हाट्सएप से। नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं शेयर स्क्रीन हाँ कर सकता हूँ, एक सेकंड।
दिख रहा है? जी जी सर, दिख रहे सर। Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. एक Myself, second. Neelam Tavre from Vidya Pratishthan English Medium School. I'm head of the Department of Sports. So my topic is today mathematics to physical education. So let me start with the introduction of my topic. Actually, this mathematics idea has come from my maths teacher, Mrs. Sadhna Hudyalkar. When I was teaching physical education, I was a little bit thinking about it as I has a interest in mathematics. So when I talked to the 9th and 10th standard students, I realized they are not able to revise the basic mathematics like multiplication, division, plus subtraction and this. So I gave in a thought that if mathematics is included in physical education, what can be done? Sir, next slide, please. Then I had a class with 9th and 10th standard, and through that I gave a game like a shuttle relay. A shuttle relay where the skill sports such as skating, hockey, football can be revised through the basic mathematics, and with that I started my classes. But later on I came to know this basic mathematics not only we can teach to 9 to 10 standard, but I can include this from kindergarten to 12th standard. And it gave me what a innovative idea, and I started implementing wherever I used to get the substitution in 7th, 8th, 9th standard. So next slide please. Objective for this my mathematics to physical education was to the basic mathematic calculation through sports and to increase the students' endurance, agility, cardiovascular, means whole team spirit, leadership, sportsmanship, coordination. Students can learn all the skill of physical education plus mathematics, what to say, multiplication, division, all these things can be learned by them. And plus kindergarten, if we include in that, they can learn the shapes, shapes like circle, triangle, a square, etc. And plus, as I'm a physical education teacher, in each and every skill there is a mathematics. Like we are supposed to tell them the angles, plus what angle they are supposed to throw. We can tell them in what duration you have to run, in what timing they have to finish up. So my next for this, I have used certain equipments. Next slide. Equipments which I commonly we are using equipment such as cones, dish cones, or lime powder. But it depends on the games which we are including. If the game is like hockey, then we are supposed to use a hockey stick and ball. Along with that, basketball, then we are supposed to use the ball and those all things. It depends on the game which we are going to teach them, and then we can teach them the actual game. So my next part is the procedure, how to play the game. We can divide the teams in 4, 3, 5. In one team, we can have 5 to 9 students. In this manner, you can have the group of 1 to 5, 9 students, means till 3, 4 groups you can divide it. But each member, we should give the number that 1, 2, 3, 4, 5. Or and plus, if the groups are more, we can give the group name 1, group A, group B, group C, group T. For example, if I am taking a circle as a shape, then the game should be played in that manner only. Only the thing is, the team teacher gives the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and if the teacher calls the number 7, this is a basic thing, right? If we are teaching to the kindergarten, then the number 7 will run outside, or number 5 will take one whole round clockwise, and then it has to come inside and collect the ball which is inside the ground which is kept. The team which is collecting the balls, as early as possible, we give them the points. And the team that does not collect the ball, they are not able to, we are not giving them the score. But if this is for 9th and 12th standard, then what I have done is,
I just told them you are supposed to multiply 97 divided by 3 or into 4. Like this, I have given them the equation, and they are immediately calculating, and whatever the answer comes, accordingly that number starts running from the clockwise, and they collect the ball and they go on their place. But I thought only one number, it's not okay. So I just made an innovative idea. 2 girls will play together, and just I gave them the calculation, that do this calculation, that multiplication, division, subtraction, addition, and then they are supposed to calculate and get the number. If the number is 71, then 1 and 7 will catch the hand, and they will run together, and they will come inside the circle, and they will collect the ball, and they will stand in their place. But when I gave this thought, I realized if I'm taking a football, cricket, there also I can implement this mathematics. As I told them, you can, the team will, those who are playing football, if while doing a dribbling, they can say the table one behind the other, like 21 table. Or in 7th standard, I told them you can take the table of 15 or 17, means this. And I realized that hockey and ball and stick, all miss football, volleyball, athletics, whatever it is, if you all are playing with a tennis also, you can do this mathematics activity while bouncing also. And when I was doing my skating club once in a week, there I realized that small children, that 3rd to 5th standard students, they are not able to remember the tables. So I started with them. I put the phone in a one line, and I started with them that you should say the tables according to that. And then I realized whenever my period is there of physical education on any class, the students are very enthusiastic, and they are mentally prepared for whatever they are mentally prepared, that we now physical education period is there, we have to be mentally prepared for mathematics. So this has give an innovative idea for me and for my students, that they are continuously revising the basic mathematics. And this we have recently started in our school, only in my periods. Actually, I will share with this my idea with my colleagues also. Later on, I came with the outcome that students are very enthusiastic whenever my period is there, because they are able to revise the basic mathematics plus division, plus multiplications, plus what to say, revise their tables very easily. And now I have seen a drastic change in the students, that immediately if a teacher asks them, immediately they answer. And whenever now teachers are very enthusiastic, means very surprised to see that the students which are with me, they can calculate very quickly and very nicely without pen and paper. So next slide, please. Later on, the outcome which has come, my students enjoy the games with means I am able to teach them the coordination, I am able to teach them what to say, leadership, I am able to teach them mathematics, I am able to teach them speed, endurance, agility. All these things are included in my this outcome. Integrated maths, common Ma'am, core. your time is already over. Sir, only You have few taken minutes. more than 8 minutes now. It's end, sir. It's end now. I'll go on the formations, sir. These are my formations which I have taken for single number. Then next formation is for double number, and later on the photos are there. Thank you, sir. Okay. These are the activities which I have taken during my 9th and 10th standard classes. And these are the activities which I am taking during my skating club. महेंद्र सिंह राणा जी, नेक्स्ट ठाकुर सर, इनसे यदि कुछ पूछना चाहें तो। राकेश भाई नमस्कार। कोठारी जी।
हाँ जी सर, नमस्कार। ना दो राकेश है, इसलिए राकेश कोठारी भी मैं। राकेश भाई है क्या? सर राकेश सर आए थे, वो चले गए शायद, वापस डिस्कनेक्ट हो गया राकेश सर। अच्छा, नहीं, राकेश कोठारी सर हैं, राकेश मोहन कोठारी सर वो हैं हाँ। सर, बने हुए। राकेश भाई, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो राजेश जी, महेंद्र सिंह राणा तैयार है? सर, बुरानिया सर, ऐसे मेरे ख्याल से पेपर प्रेजेंटेशन में साथ साथ से इन लोगों को इंट्रोगेट दिक्कत आ कर रही है? लेते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर बाद में भूल जाएंगे हमें पूछना क्या है। जी जी, तो एक एक के साथ लेके। हाँ नहीं, जैसा कहें, क्योंकि एक तो एक का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ऐसे छोड़ते रहेंगे तो फिर बाद में। ठीक है, तो साथ साथ में लेते हैं, हाँ एक के साथ एक, बाद में दूसरे के, ठीक है? हाँ। तो राकेश भाई, क्वेश्चन। आपको मेरी आवाज आ रही है? राकेश कोठारी जी, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, तो मैंने कहा इनको बुला लिया, मैंने कहा ये थोड़ा सा देख ले। जी जी, राकेश भाई, मैं इनको एक बार कॉल करता हूँ, ये ड्राइव कर रहे थे। तब तक बुरानिया सर, एक बार आप इनसे क्वेश्चन करें, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके। मुझे जितना भी समझ में आया मेरे हिसाब से बात करता हूँ। हेलो, लाइन Yes, पे? sir. Yes, sir. हाँ हाँ, आपने जो मॉडल पसंद किया है मैथमेटिक्स थ्रू एजुकेशन सिस्टम वाला, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसका कंक्लूजन फिर से एक बार बताइए। Sir, when I started with this activity, first actually last time lesson plan competition was there. So I have given this as a lesson plan. And that time I realized that mathematics can be included in physical education. Actually, it is there in the physical education. So multiplications, I started with the tables first. And जी then I realized that in 9th and 10th standard girls, they need to revise the basic mathematics. जी So a conclusion was that during mathematics, I was teaching my physical education classes. Basic mathematics concept was very poor for 9th and 10th standard girls. So I just started with 23 multiply by 4. Then they used to answer me. जी Now what has happened, whenever my class is there, they are mentally prepared in their mind only that Miss is going to teach us Miss is going to ask something about the mathematics. The students which used to use a paper and pen, now they are not using, sir. जी Means if I tell them the basic mathematics, they are motivated to for the calculations now, sir, without paper and pen. And plus they are enjoying my physical education activities, whatever I'm taking, it is included with the maths. ओके, राकेश भाई, अब आप गुड ट्राई, गुड ट्राई, वेरी गुड ट्राई, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, हाँ sir. राकेश भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छे से आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। एनईपी 2020 में जैसे इंटीग्रेटेड की बात हम कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन को सब्जेक्ट के साथ जोड़ा है, दैट इज वेरी गुड। एक एक्टिविटी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, कोई भी एक एक्टिविटी आप बता रहे थे, जैसे मैंने सुना कि जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं या टेबल की बात करते हैं तो आप नंबर दे देते हैं और Yes, sir. नंबर दे देते हैं और वो जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो नंबर वहां से आता है, बॉल को पिक करता है, इज इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें और मैं केवल एक मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, और क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम? सर इसमें डिवीजन भी ले सकते हैं हम लोग, और जैसे? अगर आपको चाहिए तो आप सर अभी मैंने कहा कि मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस प्लस डिवाइड दैट नंबर, वॉट एवर द आंसर का, मल्टीप्लिकेशन के साथ जो भी डिविजन आपका डिवाइड किया, जो भी आंसर आता है उसके साथ आप भागो। मैंने एक प्रयोग किया था सर कि मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों को एक साथ मिला दिया था सर। जैसे 12 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 प्लस 4, ये मैंने कोशिश करके देखी थी सर, और मैं उसमें सक्सेस भी हो गई, क्योंकि लड़कियों ने
बहुत अच्छा रिस्पांस दिया सर। थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में सर, लेकिन कर लेती हैं वो लोग। तो आपका कहना है कि जो आंसर आप पहले से इसको बना के रखते हैं और जो आंसर आएगा वो आपको, आप उन बच्चों को वो नहीं नंबर सर, देके मैं रखते पहले हैं कि बच्चे को ये नहीं पता सर, चले? मैं पहले से आंसर नहीं बताती, मैं कुछ भी कोई भी किसी के भी साथ जोड़ देती हूँ, मैं पहले से आंसर या क्वेश्चन तैयार नहीं करती हूँ सर। नहीं, लेकिन जब जो भी मुझे आंसर कुछ आएगा वही नंबर तो आप अलॉट करेंगे ना बच्चे को, वही हाँ सर, हाँ सर, सबका सर 4 ग्रुप होते हैं या 3 जो भी ग्रुप आंसर होते हैं, तो आएगा सबका वही पिक करेगा ना। हाँ सर, हाँ, नहीं सर, वैसा नहीं है। जो भी मुझे पहले आंसर बताता है वो 3 लोग एक साथ बता देते हैं मुझे, या 4 लोग बता देते हैं। किसी को पहले समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है। जिस बच्चे को जिस ग्रुप को पहले समझ में आता है आंसर, वो फटाक से नहीं, भागना शुरू ये कर मैम देता मैं है। ये कह रहा हूँ कि ये एक्टिविटी कहाँ हुई फिर, अगर आंसर आपने पूछना है, इसमें फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? सर आंसर बताने के बाद उनको क्लॉकवाइज भागना होता है ना सर। नहीं तो कौन तो उसमें भागता है, आपका बच्चा भागता है या बच्चे 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 ग्रुप बच्चे भागता भागते है? हैं ना सर जी। नहीं नहीं जी, जो आंसर आया है अभी फॉर जो एग्जांपल आप 13 आपका आंसर कहना आया है कि है। जो आंसर बताएगा वो क्लॉकवाइज भागेगा। हाँ, क्लॉकवाइज भागेगा। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड, और दैट्स गुड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। तो राकेश भाई, ये चीज पहले मैं आपसे सीखूंगा, तब मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे मैं राजेश भाई, एक्चुअली क्या है कि फिजिकल एजुकेशन में इतनी शक्ति है कि हम कोई भी चीज को, बच्चा खेलने के पर्पज से वो उसको सॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए नहीं, मतलब मेरा खेलेगा इसलिए ये सॉल्व कर था रहा है। कि 97 - 35 यदि मैं क्लास प्राइमरी लेवल में पूछूं तो समझ में आता है, यदि मैं 9th के बच्चों को, वो पहले से उसको ये चीजें पता है, जी, तो वहां ये कितना मैं इफेक्टिव सुन होगा नहीं मैं पा नहीं रहा हूँ, जानता। नेटवर्क में दिक्कत है। तो वहां ये कितना इफेक्टिव होगा मैं नहीं जानता। मैं ये कहना चाह रहा था मैम से, मैं वही कहना चाह रहा था कि इनको पहले से वो नंबर सेट करके रखने पड़ेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। जैसे आपने 97 कहा, 97 माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर डिवाइड किया, तो वो जो भी हाँ आंसर आ रहा है वो आंसर हाँ उनको पता होना चाहिए, मतलब मैम को पता होना चाहिए, टीचर एजुकेटर को पता होना चाहिए, तभी तो वो हाँ उनको जी अलॉट करेगा कि जो भी इस आंसर को बताएगा या तो वो पेयर भागेगा या वो उस चीज का वो एक्टिविटी करके दिखाएगा। सेकेंडली मैम, मेरा हाँ ये जी सर। कहना है कि एज ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट, आप ना इसमें जैसे हम बात करते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटी में कौन से ग्रेड में है, उसके लेवल के हिसाब से उसकी जो एक्टिविटी है वो हमें डिसाइड करनी होगी, ये क्योंकि सर, यहाँ ये पर हाँ, केवल सर, भागना दौड़ना ये पकड़ना नहीं होगा। मेरा भी ये यही सर, कंसर्न है। जो भी एक्टिविटी है प्राइमरी लेवल पे तो समझ में आता है। एग्जैक्टली उसके बाद एग्जैक्टली की यदि मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्वेश्चन क्लास 9th में सिखा रहा हूँ या 10th 12th में सिखा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से वहां पर पर्पस कुछ हल नहीं होगा। राजेश नहीं भाई, सर, मैं यहाँ अभी पर यहाँ पर मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा। जो मैम कह रहे हैं हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर जाएंगे। जैसे आप इसको लेते हैं तो आप बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं कि वो बिना पेन और पेपर के जल्दी से कर पाए, चाहे वो आपका स्क्वायर रूट है या कुछ भी है, अगर वो सीखना चाहता है तो उसके ऊपर के लेवल पे जो हम कर पाएंगे ग्रुप्स में, तो वो ग्रुप्स में करने के बाद वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो मोटो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा के विन करना है, क्योंकि बच्चा एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले, इंक्लूडिंग अस, एंड वी वांट टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो वहां पर मोटिव वो है कि वो सीख पाए और उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाए। तो एक्टिविटी हाँ, का मैं चयन करना, वही कह रहा हूँ कि बच्चे को पहले ट्रेनिंग दी जाए फास्ट कैलकुलेशन की, उसके बाद एक्टिविटी के साथ उसको जोड़ा जाए, क्योंकि हाँ, सर ये कर चुके थे हम लोग कि मैंने पहले उनको ये जो आप हाँ, बता रहे ये हैं। आपने बताया नहीं, क्योंकि बच्चा यदि वहां सॉरी सर, नहीं सर, कर ये रहा है कर तो फिर चुके हैं। कोई पर्पस नहीं होता है। क्योंकि नहीं सर, राकेश जो है वो स्टेडियम में कई साल तक इन्होंने कोचिंग दी है दिल्ली में, तो मुझे लगा ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हम लोग तो सिर्फ टीवी में मैच को देखते रहते हैं।
नहीं सर, ये कर चुके थे हम लोग पहले, और फिर हाँ, मैंने उसको ये आपने नहीं बताया, चलिए ठीक है। सॉरी सर, सॉरी सर। मुझे इसलिए समझ में नहीं आया कि ये प्लस माइनस ये बच्चा नहीं एक नहीं सेकंड में नहीं करके नहीं सर, उसका पर्पस क्या होगा। ठीक है, नहीं चलिए। सर, ये कर चुके। It depends upon the level of the child मैं whom we are समझ leaving to educate. कि हम manipulate बाकी कल डीवीएससी में चलो आप ड्राइव करो जनाब, घर पहुंच गए। ठीक है राकेश भाई। जी नमस्कार सर, मैं हिमाली मैम बोल रही हूँ। क्या मेरे लिए कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल मैम, इनके बाद क्योंकि थर्ड प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगी। हेलो। हेलो जी। मैम, हेमली मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ओके। जब थर्ड पार्टिसिपेंट्स अपना प्रेजेंट करेंगे उसके बाद। ओके, ठीक महेंद्र है, सिंह चलेगा। राणा जो कि पहले बुलाया था उनको, सेटिंग नहीं थी उनकी, तो अब यदि वो अवेलेबल हैं तो आ जाएं सर प्लीज। जी सर, मैंने ये लिंक भेजा था, इसका पीडीएफ का लिंक आपके चैट बॉक्स में था सर, तो मिल पाएगा? चैट बॉक्स में लिंक भेजा था। ठाकुर सर मैंने आपको सेंड किया था, यदि आपने किया हो तो शेयर करें। मैं हिंदी में लिखा है। हाँ सर, हिंदी में, यस। युगल सर ने कर दिया शायद। हाँ जी। हाँ जी यही है सर। सर, ये वाला। हाँ यस, जी सर, जी सर। मैं कर दूं क्या पीपीटी? ये छोटा दिख रहा हो तो कर दो सर आप। ये बड़ा हाँ बड़ा बड़ा जी जी जी। दिख रहा है। ठीक है सर। आप जैसा कहें, मैंने डाउनलोड कर रखा है, कोई नहीं। जी जी हो महेंद्र जी आप कंटिन्यू करें सर। हाँ सर, मैं सर सभी को मेरा नमस्कार। जी जी धन्यवाद। आगे महेंद्र जी। जी सर, मैं महेंद्र सिंह राणा जीआईसी किंगसुर में कार्यरत हूँ, और उत्तराखंड का एक बहुत ही दूर का, बहुत ही इंटीरियर गांव एक स्कूल में कार्यरत हूँ। तो जो मैंने जो अपने जो पेपर प्रेजेंटेशन जो दिया है मैंने सर, ये मैंने 6th 7th 8th के बच्चों को लेकर किया है। और उत्तराखंड में किस गांव से हैं? हमारे किंगसुर सर, पौड़ी गढ़वाल में सर। राकेश सर हमारे भी उत्तराखंड से ही है। हाँ सर, जीआईसी सिलोगी पड़ता है, उसके बाद ये पौड़ी गढ़वाल द्वारिखाल ब्लॉक में पड़ता है सर। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल। चलिए वो राकेश भाई को ही पता होगा। पौड़ी जी गढ़वाल सर। तक मैं जानता हूँ। जी, तो सर मैंने ये जो पेपर जो बनाया है, ये अपनी कक्षा कक्ष में जो 6th 7th 8th के बच्चों को लेकर बनाया है। और इसमें सर, इसमें सबसे पहले हमने जब देखा कि बच्चों को 2D या 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशन के को पता नहीं था उनके बारे में, तो उस समस्या को लेकर के ये हमने एक कार्य योजना बनाई सर। मैंने कक्षा कक्ष में आपका टॉपिक क्या है महेंद्र जी? 2D या 3D, बच्चों को 2D या 3D कैसे समझाया जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2D कोई भी वस्तु 2D है या 3D, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं सर बहुत ज्यादा। जैसे अगर उनसे कहा जाए गोला या सर्किल, तो कौन सा है, तो वो बच्चे कहते हैं कोई कभी 2D बोलते, कभी 3D बोलते हैं। तो इस बात को लेकर के हमने उनको गया सर। तो इसमें 6th 7th और 8th के बच्चों को लिया गया सर। तो इसकी सबसे पहले हमने एक टेस्ट पेपर लिया था सर। टेस्ट पेपर हुआ था, तो टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस थे, जैसे गैस सिलेंडर हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, या कॉपी हो गया, या जोकर की टोपी हो गया, ये आकृति किस प्रकार की चयन कीजिए। तो बच्चों को इसको मिलान करने के लिए दिया गया। तो बहुत से बच्चों ने शुरू में बहुत ही कंफ्यूजन किया, और उनको इस 2D और 3D के बारे में समस्या का पता नहीं चल पाता कौन से 2 है, कौन से 2D है, कौन से 3D है। तो सबसे पहले उनका समस्या का चयन किया गया सर। थोड़ा आगे बढ़े सर। उसके बाद जो 2D के अंतर्गत कौन कौन सी आकृतियां आती हैं, और हमारे जो जनरल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ पर इनको मिलता है, या 3D कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, उनको समझाने के लिए बच्चों को इस विषय का मुख्य फोकस किया गया सर। इसमें 6th और 7th 8th तीनों को इकट्ठा लिया गया सर। आगे सर, ये प्रारंभिक स्थिति है, फर्स्ट पोजीशन। इसमें जो टेस्ट पेपर लिया गया है, इसमें आप देख रहे होंगे, ये कक्षा कक्ष में एक CCE कॉम्प्रिहेंसिव
कम्युनिटी इवोल्यूशन टेस्ट होता है सर, उसमें बच्चों का ये पेपर दिया गया, तो उसमें बच्चों के जो देखा गया कि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में थे, उसी को देख करके ये इस समस्या का चयन किया गया। इसमें विभिन्न आकृतियां दी गई हैं, जिसमें आकृतियों के नाम लिखने हैं कि यह 2D में है या 3D में है। तो इसी हमने देखा कि इसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको ले रखा है सर। तो ये टेस्ट पेपर पहले का टेस्ट पेपर है, जब हमने उनके बारे में बताया नहीं था। आगे सर, विषय चुनाव का कारण सर, विषय चुनाव का कारण मैंने बता दिया है बच्चों को। जैसे अगर कहा जाए किताब कौन सी आकृति का है, पत्थर कौन सी आकृति का है, चौक का डिब्बा कौन सी आकृति का है, तो उनमें कंफ्यूजन था। तो सबसे पहले फिर हमने बताया कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो ये डी डायमेंशनल, दो द्विविमीय और त्रिविमीय। तो सबसे पहले बीमा का ज्ञान दिया गया सर। थोड़ा आगे बढ़े सर, उनको व्यवहारिक जीवन से जोड़ा गया। अब जैसे ये सर एक उदाहरण दिया गया, सबसे पहले एक पन्ना रखा गया जमीन पर, जिसमें हमने कहा कि भैया ये पन्ना दिख रहा है आपको, एक पृष्ठ इसको बोल सकते हैं, पेज। और हमने कहा ये बताइए बच्चों को, आप बताइए कि ये कौन से बीमी है, 2 बीमी है, त्रिविमी है। तो बच्चों ने, किसी ने कहा सर ये 2 बीमी है, किसी ने कहा त्रिविमी है। हमने कहा देखो इसमें आपको देखो 2 चीज दिख रही है, एक तो लंबाई दिख रही है और एक थोड़ी चौड़ाई दिख रही है, तो ये द्विविमीय हो गया। द्विविमीय से मतलब ये हुआ जो 2 दिशाओं में जा रहा है। फिर हमने उसके ऊपर पन्ने पे पन्ना रखता गया। तो हमने कहा अब बताइए कौन से, तो बच्चों ने फिर वही इसमें 2 बीमी कहा, लेकिन हमने कहा देखो अब द्विविमीय कैसे हुआ। तो हमने कहा कि देखो अब 2 बीमी तो पहले थी लंबाई चौड़ाई थी, अब आप देख रहे होंगे इसमें चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी आ गई। तो ऊंचाई का ज्ञान इसमें हमने बहुत कराया कि ऊंचाई भी एक बीमा होती है, और इसमें 3 बीमा आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमने बच्चों को धीरे धीरे बताने का प्रयास किया कि भाई 1, 2, 3 बीमा भी उसमें जुड़ सकती है, तो त्रिविमीय आकृति कहलाएगी, और उसको व्यवहार से जोड़ा। फिर सर आगे, हाँ सर, अब इसमें ये होता है कि हमने शुरू में ये बताते कि 2 बीमा और त्रिविमा थोड़ा थोड़ा उनको समझ में आया। हमने इसको साधारण भाषा में बना कि जो वस्तुएं जमीन से बिल्कुल फ्लैट चिपकी हुई होती है, माना फर्श है, फर्श में पन्ना रखा, पन्ना चिपक गया, तो इसका मतलब वो 2 बीमी में जा रहा है। इसी प्रकार कोई वस्तु अगर जमीन से धीरे 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 ऊपर उठती हुई चली जाए, अगर अर्थात उसमें जमीन से ऊंची उठनी शुरू कर दे, तो 3 बीमा में आने परिवर्तित हो गया। इसका फिर हमने उदाहरण शुरू किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्किल लिया सर, सर्किल वृत्त को देखा, वृत्त रखा, तो बच्चों ने कहा भी आप बताइए कैसा है ये। तो कुछ बच्चों ने कहा ये द्विविमीय है, किस बच्चों ने कहा त्रिविमीय है। हमने फिर उनको बताया ये बताओ जमीन से चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है। तो बच्चों ने कहा बिल्कुल चिपका हुआ है सर। तो इसमें कौन सी बीमा आ गई। बच्चों ने थोड़ा एकदम से दिमाग से कहा कि 2 बीमा है, क्यों, क्योंकि जो फ्लैट बिल्कुल 2 बीमा में जा रहा है, 2 दिशाओं में जा रहा है। इसी प्रकार हमने गोले की बॉल रखी, एक प्लास्टिक की बॉल, अब बताओ कौन सा है। तो बच्चों ने कहा जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ गया, इसका मतलब त्रिविमीय है। तो इसका मतलब बच्चों को द्विविमीय और त्रिविमीय थोड़ा थोड़ा अंतर स्पष्ट होने लगा। इसके बाद कार्य योजना बनाई सर हमने कि वर्क प्लान कैसे किया जाए। तो धीरे धीरे हमने बच्चों के मानसिक स्तर के 6 के बच्चों के, 7 के, 8 के, इस प्रकार के बच्चों के अनुरूप वस्तुएं दी उनको, और बताया कि अब बताओ इनमें कौन कौन सी बीमाएं हैं। और उसमें तब बच्चों ने धीरे धीरे, बच्चों ने पहले आकृति का नाम बताया और बीमा का नाम बताया। उसके बाद फिर हमने जब उनको थोड़ा बीमा का ज्ञान हो गया, तब हमने उसको फलक, किनारे, शीर्ष क्या होते हैं इनकी जानकारी देना शुरू कर दी। फलक मतलब फेस, और इसके जो एज होते हैं, या फिर शीर्ष उसका एज या कॉर्नर जो होता है क्या होता है, धीरे धीरे उनके ज्ञान देना शुरू किया। आगे प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे की। कक्ष में सबसे पहले हमने जो कक्ष को जोड़ा, जो भी हमने वस्तुएं थी, जैसे ब्लैक बोर्ड दिख गया, चौक का डिब्बा दिख गया, चौक दिख गई, अन्य जितनी भी वस्तुएं कक्ष में हो सकती थी सबको दिखाया, और उनके बारे में पहले पूछा बच्चों से, और तब उसके बारे में, जैसे कक्ष लिया हमने, तो उसमें बताया कितने फेस है। तो फेस के बारे में बच्चों ने गिन के बताया, 1, 2, 3, दीवारों को गिन के बताया, छत और फर्श को गिन के बताया। तो इसका मतलब उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फेस, फलक क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी दी। सर आगे, उसके बाद फिर व्यवहारिक जीवन जो हमने जैसे बॉक्स रखे हुए सर, ये डिब्बे हमने इकट्ठा किए, बच्चों से करवाए, और हमने कहा बताओ अब आप खुद बताओ कि ये किस प्रकार की आकृति है। तो बच्चों ने कहा ये त्रिविमीय है या द्विविमीय, जो भी आकृति है। फिर उनका नाम, स्पेशल नाम क्या होता है, क्यूबाइड क्यों कहते हैं, क्यूब क्यों कहते हैं, इनकी विशेषताएं धीरे धीरे हमने बच्चों को बताई। और उसके बाद उसके सरफेस क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी जानकारी बच्चों को दी धीरे धीरे। आगे सर, फिर हमने उन जो बॉक्स थे उसके बाद फलक, उनके 6 के जो फलक होते हैं उनको अलग अलग करके दिखाया।
ये मॉडल बच्चों ने बना रखा सर, ये बच्चों के द्वारा बनाया गया है। फिर हमने उसको अपने आप बच्चों से कहा कि भाई पहले आप 6 फलों को जोड़िए। तो 1 2 3 4 5 6 जो फेसेस हैं इनको अलग अलग करके दिखाया और प्रत्येक फेस का एरिया करके दिखाया, फिर जोड़ करके दिखाया। सर आगे थोड़ा आगे बढ़िएगा। और ये 6 फलक जब जोड़ के तो उनका टोटल सरफेस एरिया बन गया। इसी प्रकार एक होता है 500। सर थोड़ा नीचे सर नीचे सर थोड़ा, यस एक्सक्यूज मी, जस्ट थोड़ा नीचे करिएगा। 500 फलक वाला इसने उससे नीचे आगे ऊपर की तरफ, ऊपर, हाँ, और ऊपर की तरफ, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर और ऊपर, यस बस यस। सर यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूजन कर रहे थे कि पार्श्व फलक क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों को ये समझाया गया, जैसे हमने 6 फलक लिए थे तो 6 में जो दीवार, लेकिन अगर हम चारों दीवारों को लेते हैं तो उसको तब हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बोलेंगे, बल्कि उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्थात जिसमें छत और फर्श नहीं होता है तो 4 दीवारें कहलाती हैं आपकी लेटरल सरफेस या पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए लेटरल सरफेस या पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, या पार्श्व क्षेत्रफल इसको बोल सकते हैं। थोड़ा आगे सर, आगे इसको ये भी सूत्र हमने बताया सर इस बच्चों का। फिर इसके बाद क्यूब के बाद क्यूबाइड क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। क्यूब में जिसमें बताया कि जब वर्गों से बनता है, स्क्वायर से बनता है, क्यूबाइड जो बनता है आपका रेक्टेंगल से बनता है। इसके डिफरेंस बताया बच्चों को सर। थोड़ा आगे सर, आगे। उसके बाद इसके घन का या क्यूब का, जैसे हमने कहा क्यूबाइड का पार्श्व पृष्ठ बताया, ऐसे ही क्यूब का भी पार्श्व पृष्ठ बताया। 1 2 3 4 दीवारों को, जो 4 दीवारें थी उनको खोल के दिखा दिया। ये गत्ते की मार्फत से बच्चों ने बनाया सर। ये आगे सर। फिर इसके बाद हम जब क्यूबाइड के बारे में थोड़ा जानकारी दी, उसके बाद हम सिलेंडर में आए। तो मैंने आपसे साथ सर कहा था कि जैसे बच्चे सर्किल और बॉल स्फेयर में कंफ्यूजन हो रहे थे, तो हमने कहा सर्किल जो बिल्कुल चिपका हुआ, फर्श से चिपका हुआ, जमीन से चिपका हुआ, जो फ्लैट होता है वो 2 डायमेंशन में जाता है। तो सर्किल क्या है, बच्चों ने एकदम से बोल दिया कि ये क्या है, 2D है। इसी प्रकार धीरे धीरे जमीन से अपने ऊपर आया, 2 सर्किल जोड़े, उसके ऊपर में गत्ते ये बच्चों द्वारा बनाया गया, स्वयं बनाया गया सर, ये मॉडल जो बनाए गए हैं। तो उसमें जब हमने एक गोल आकृति डाल दी दोनों सर्किल के बीच में आकृति, अब क्या बनाए, तो बच्चों ने एकदम से बोला ये सिलेंडर, या जो घर में सिलेंडर दिखता है उस टाइप का है। थोड़ा आगे सर। तब उसके पृष्ठ क्षेत्रफल बारे में बताया। अब हमने क्या करा, टेस्ट लिया सर, ये 2D और 3D का जो टेस्ट लिया बाद आफ्टर, ये जब बताने के बाद, तो बच्चों ने, जो बच्चे पहले कंफ्यूजन करते थे उनको एक्यूरेटली काफी हद तक पता चल गया था, और उनका जो टेस्ट पेपर का आंसर सर दे रखे हैं सर, ये टेस्ट पेपर बच्चों का है। तो बच्चों ने बहुत सुधार आया सर उनपे। फिर से हमने क्षेत्रफल के बाद फिर हम वॉल्यूम में आए, आयतन क्या होता है। जब अंदर की बात करते तो आयतन की बात करते, कमरे के अंदर हमने कहा तो अंदर घुस गया तो हवा कितनी है वो वॉल्यूम में आता है। और जो बाहर की बात करते हो क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमने धीरे धीरे वॉल्यूम और एरिया के बारे में थोड़ा जानकारी दी बच्चों को। धीरे सर, आगे सर। फिर किसका आयतन कितना होता है, ये तो फिर सूत्र हमने भी धीरे धीरे बच्चों को बताया, क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल गुणा होना चाहिए। इस प्रकार से धीरे धीरे आयतन के बारे में बताया सर। फिर इसमें एक चीज आती है थोड़ा सा, प्रिज्म क्या होता है, व्हाट इज द प्रिज्म। बच्चे 2D 3D थोड़ा सा समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, लेकिन प्रिज्म और एक आता पिरामिड, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे। सबसे बड़ी बात होती है कि आपका आधार और ऊपर का जो सिरा होता है उनको बिल्कुल सेम आकृति का होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने कहा सर, जैसे मैंने कहा भाई जी आप कमरा ले, तो कमरे का फर्श और कमरे की छत एक जैसी है, अगर उसके आप उसे कोनों को मिलाओगे तो एक प्रकार का प्रिज्म हो सकता है। तो प्रिज्म का गुण ये होता है कि आधार का और ऊपर का सिरा जो होता है बिल्कुल एक समांतर होता है, और कोने जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के होते हैं। जैसे हमें चित्र दिखाया गया है, ये चित्र के माध्यम से, और फिर व्यवहारिक जीवन में बताया सर प्रिज्म के बारे में, और सूत्र फिर हमने उनको सूत्र का ड्राइव करना सिखाया। उसके बाद जब हमने आगे ये, हाँ सर, ये विश्लेषण टेबल है। प्रयोग से पहले या कक्ष में हमने जो क्रियाकलाप किया उससे पहले और क्रियाकलाप के बाद का जो परीक्षण किया, उसका टेबुलेशन, उसकी विश्लेषण सारणी है सर। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, कक्षा 6 में हमारे उस समय थे 21 बच्चे, 21 में से जिनको पूरी जानकारी डेफिनेट 2D 3D के बारे में 3 बच्चे या 4 बच्चे थे, और 18 करीब बच्चे जिनको पता नहीं था। लेकिन जब हमने ये एप्लीकेशन किया, जो उसको अप्लाई किया, उनमें से लगभग 19 बच्चों ने एक्यूरेट जवाब दिया। 2 बच्चे करीब अभी भी थोड़ा अज्ञात, जिनको जानकारी थोड़ा कंफ्यूजन थे। तो जो 90% करीब एक्यूरेटी प्रतिशत वृद्धि हुई, जो कि बहुत पॉजिटिव था, बहुत ही सुधार आया उनमें। इसी प्रकार कक्षा 7 में भी देखा, 18 बच्चों में से 2 बच्चे कंफ्यूजन में थे,
16 बच्चों ने एक्यूरेट जो दे नहीं पा रहे थे जवाब, लेकिन बाद में जब हमने इम्प्रूवमेंट किया तो 15 बच्चों ने दिया और 3 बच्चे तभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थे, तो 83%, 83.3 के करीब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ सर। इसी प्रकार 8 क्लास में 19 बच्चों में से 4 पहले नहीं दे पा रहे थे, बाद में 16 बच्चे दे पाए, और ये टेबल तुलनात्मक सारणी बना रखी है कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों में, तो बहुत जगह काफी बेनिफिट मिला सर। और ये फिर टेस्ट लिया सर, टेस्ट के बाद हमने जो देखा जो कमियां रह गई थी उस टेस्ट में इस बच्चों ने बाद में पूरा इम्प्रूवमेंट किया, तो कहने का ये तभी ये टेस्ट बाद की टेस्ट का है। और जब फाइनल जो डिसीजन निकला, बच्चों का जो निष्कर्ष निकाला सर, तो हमने जो बच्चे बहुत मतलब कम जवाब दे पा रहे थे 2D 3D में, बाद में वो 2D 3D को देखते ही बता पा रहे थे। जैसे हमने कहा चौक कौन सा है, तो बच्चों ने कहा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो 3D। तो ये बताया कि इस प्रकार से बच्चों ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया सर 2D और 3D में, और आज के डेट में वो एकदम से बता पाते सुझाव। और इसमें सर थोड़ा आइडिया वगैरह जो देखा हमने, बच्चों को जो व्यवहारिक जीवन में से कुछ भी हमको बल्कि किताब से ही नहीं जोड़ना, बल्कि व्यवहार में से बाहर ला, कमरे से बाहर लाए, पेड़ पौधे चिड़िया या जो पत्थर कुछ भी दिखा दे, उनसे पूछे कौन सी बीमा में, तो बच्चे एकदम से जवाब देने लग गए। चुनौतियां क्या थी सर, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ही आई कि बच्चों को समझाने में बहुत 2D 3D में डायमेंशनल क्या होता है ये बारे में थोड़ा सा जानकारी देने में थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन बाद में बच्चे बहुत समझ में आ गए तो एकदम से जवाब देने लगे, और उससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ सर। और जो हमने बुक्स सपोर्टिंग के लिए लिए एनसीईआरटी की, उत्तराखंड एससीईआरटी की, इनकी हेल्प से और बच्चों के सहयोग से सर ये कार्य काफी हद तक संपन्न हुआ। थैंक यू सर। ठाकुर सर कोई प्रश्न करेंगे? राकेश भाई कोठारी जी, चलिए सबसे पहले राकेश से स्टार्ट करते हैं। राकेश भाई पहले आप स्टार्ट करिए। राजेश भाई मुझसे कह रहे हैं आप? अरे तो आपके उत्तराखंड से थे तो मैंने कहा आप start। नहीं प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए, मैं क्योंकि नीचे था तो ये नेटवर्क में दिक्कत थी तो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अब सुन रहा हूँ। ना इनका खत्म हो गया, मैंने कहा चलिए ये आपके कहाँ से थे? पौड़ी गढ़वाल के इधर से कहीं से? उत्तराखंड से सर। जी मैंने देखा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ 3D और 2D के बारे में बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया उसको, तो आप प्लीज कमेंट्स कीजिए। और ठीक है मैं राकेश शोबर जी। हेलो जी सर। आप लोग बोल लें फिर मैं बोलूंगा। हाँ सर, अच्छा प्रेजेंट किया इसने। बोला तो कुछ चीजें हमें पता नहीं चली, लेकिन 2D और 3D जो कंसेप्ट जो लेके चले हैं ये, तो उस माध्यम से ही इन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा इशू है, इंग्लिश में, मतलब हमने तो इंग्लिश में पढ़ा है लेकिन इन्होंने हिंदी में बताया, थोड़ा सा बाकी इनका ओवर टू सर। क्यों ये सर इसलिए हमारे क्योंकि लैंग्वेज हम अरे नहीं महेंद्र जी चिंता, हाँ हिंदी वाला मैं बैठा हूँ, चिंता ना करें। जी सर। हाँ मैं हिंदी वाला आदमी, ठीक है, चिंता ना करें। पहले बुरानिया सर। हेलो। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या महेंद्र जी? जी सर आ रही है सर। जी सर। अच्छा, आप उत्तराखंड में अभी टीचर्स की हैसियत से काम कर रहे हैं क्या? जी मैं एज ए टीचर हूँ सर। उत्तराखंड में है क्या? जी हाँ, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में हूँ सर। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में अभी काम कर रहे हैं आप? सर मैं 12th 12th में सर, 9th से 12th तक। ओके, तो आपने अभी जो काम बताया वो तो 6 से 8 स्टैंडर्ड तक का है ना? सर मैं अभी हाल ही में प्रमोशन हुआ था, मैं पहले 6 to 10 में था सर। ओके, तो आपने जो बताया, जो प्रयोग किया है और 2D और 3D वाला, वो तो बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है। मुझे टेबल कितना था उसके लिए? सर इसमें कितना गया? जी सर, इसमें दरअसल क्या हुआ सर, ये पहले फर्स्ट जो टेस्ट हुआ
3 मंथ्स के पहले, तो जी। मैंने ये इसमें टाइम लगा मुझे लगभग 15 डेज के लगभग लगा सर। जी। फर्स्ट वीक में तो मैंने सब पहले उनका प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व करने की कोशिश की, फर्स्ट में प्रॉब्लम क्या क्या है जी। फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में उसमें कार्य किया। और थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैम एक बार जैसा स्लाइड यदि आप शेयर कर दें, क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरे आप फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी, तो हम हाँ लोग श्योर श्योर डेफिनेटली सर, मैं अभी शेयर कर लेती हूँ। तब तक सनी अगला कौन है उनको तैयार कर। पेपर प्रेजेंटेशन में यदि कोई और बचा है वॉलेंटरी सामने आ जाइए। यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आप यहाँ प्रेजेंट हैं तो आइए। नहीमा फरीद मैम है। मैम आप रेडी हैं? आप हाल तो मैं आपको बता दूं नहीमा मैम कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन में रजिस्टर नहीं किया था, बट आपने कॉल किया था कि मेरे से मिस्टेक में स्टोरी टेलिंग को हो गया है क्लिक। बट आप पेपर प्रेजेंटेशन के साथ अगर रेडी हैं, यदि आप रेडी हैं तो आप आ सकते हैं, इतना आलो हम कर सकते हैं। आप रेडी हैं मैम? नहीमा फरीद ख्वाजा। जी सर। जी मैम, आप कंटिन्यू करें। सर पहले कंटिन्यू करवा लें या मैम से हेमली हाँ जोशी मैम, मैडम से पूछना आपने? हाँ कंटिन्यू करवा लीजिए। सर कंटिन्यू करें इनको? जी हाँ, जी कर जी लीजिए। करिए हिमालय मैम आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दें तो मैं तब तक स्लाइड अपने तरफ से देख लूंगा, जी फिर जी आपसे। हेमली मैम जी, आप मुझे कर दीजिए। हाँ हो send। कर दिया सर, जी, आपको जी। व्हाट्सएप कर दिया है, ओके ओके तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ठाकुर जी, सर को। ओके ओके। नहीमा मैम आप कंटिन्यू करें मैम। नहीमा फरीद मैम, ख्वाजा मैम जो है। मुझे जो फाइल है वो शेयर नहीं हो रही है। Ana jos prometimo coreo. Hamina bakay. Magsile yin share hago. Makas ba time to arbu. Wala. क्या समस्या है सनी इनकी? नहीमा मैम आप रेडी हैं या आप नहीं कर पा रही हैं, बताइए प्लीज। तो मुझे आप शेयर नहीं हो रहा है वो। हम आप शेयर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें तो हम लोग शेयर कर देंगे इधर अब से। चैट बॉक्स में डाल दो उसको ताकि ऑलरेडी शेयर वहां पर डाला है मैंने सर। वहां डाला हुआ है चैट बॉक्स में। जी सर। हाँ चैट बॉक्स में है सर। ये अच्छा, ये ड्राइव जो हाँ, है नहीं हाँ ये ड्राइव वाला, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, नहीमा फरीद करके लिखा है। ओके। 346 पे ये इन्होंने शेयर किया था, 346 पे। जी। पेपर प्रेजेंटेशन ठीक है, मैं शेयर कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, विजिबल है? जी जी सर। जी सर, थैंक यू। ओके। So first of all, good evening everyone. Myself Naima Farid. I'm from Jammu and Kashmir district Kupwara. Recently, I'm pursuing MSc from Kashmir University and doing a job in a private institute in my own area. I feel very proud to represent paper presentation in this platform on the topic integers. So first of all, हिस्ट्री ऑफ इंटीजर्स की जो इंटीजर्स हैं वो कैसे वजूद में आए, तो इनको बहुत टाइम लगा वजूद में आने के लिए। तो ये जो है ये लियोपोल्ड क्रोनेकस ने दिया था इंटीजर। इन्होंने कहा था कि गॉड मेड इंटीजर्स, द रेस्ट इज क्रिएटेड, गॉड मेड इंटीजर्स एंड रेस्ट is a work of a man. This quote symbolized that no man created integer. God, इनका ये मतलब था कि जो इंटीजर्स हैं वो गॉड ने बनाए हैं, लेकिन जो बाकी का जो काम है वो उन्होंने मैन पर छोड़ दिया है कि वो इसको कैसे इस पर काम करेंगे, इसको कैसे वजूद में लाएंगे। उसके बाद जो ये एक सेकंड सर, एक्चुअली ये डिसेबल हो रहा है बार बार। एक सेकंड फिर से कर देता हूं। जी जी।
लियोपोल्ड ने अपना जो काम था वो कंटिन्यू किया है, उन्होंने मैथ्स में भी किया है, इन्होंने इंटीजर्स के ऊपर तो किया है और नंबर थ्योरी पर और अलजेब्रा पे किया है इन्होंने। तो आते हैं टॉपिक पे। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स होते हैं द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर अपोजिट। तो होल नंबर्स होते हैं कि ऑल दोज काउंटिंग नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड देयर अपोजिट्स दैट आर नेगेटिव नंबर्स। तो जो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नंबर जो होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और साइन जो है, साइन ऑफ एन इंटीजर, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो जो ग्रेटर देन 0 होते हैं उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं एंड जो लेस देन 0 होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो इसमें जो 0 है, 0 में जो कंफ्यूजन रहती है कि 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 0 जो है वो साइन लेस है, ना वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है। फिर उसके बाद है कि हम इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो नंबर लाइन की बात करें अगर, तो जब हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को शो करते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो हम 0 है वो सबसे पहले हम 0 को मार्क करते हैं और जो राइट ऑफ द 0 होते हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, वेयर एज द पॉइंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनको हम मार्क करते हैं -1, -2, -3। जो हमारे लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट साइड में होते हैं वो माइनस वाले होते हैं एंड जो राइट साइड वाले होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। एंड द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टर्म्ड एज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। और ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें +2 को करना है, मार्क करना है नंबर लाइन पर, तो उसके लिए हम 0 से 2 स्टेप जो है वो हम आगे की तरफ जाते हैं। और सिमिलरली अगर -5 की तरफ अगर हमें जाना होगा तो उसके लिए हम 0 से लेफ्ट की तरफ हम 5 स्टेप जाते हैं। तो उसके बाद है ऑर्डरिंग। तो इसके 2 ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होते हैं जब हम स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर नंबर जाते हैं। जब हम नंबर्स को, इंटीजर्स को, जब हम स्मॉलर नंबर से हम ग्रेटर नंबर्स की तरफ जाते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और उसके बाद है जो समलेस नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल समलेस नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर एग्जांपल दी है, जैसे है -25, 6, -62, 15, -60। तो ये जो नंबर हैं अगर हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है वो -62 है। और -62 क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे हम 0 से लेफ्ट जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो वैल्यू जो होती है वो डिक्रीज होती रहती है। दैट मीन्स कि जो -62 है वो इसमें क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है। उसके बाद -60 है, उसके बाद -25 है। तो इसको अरेंज करके हमने इस तरह लिखा है, -62 इज लेस देन, -60 इज लेस देन, -25 इज लेस देन, 6 इज लेस देन 15। फिर उसके बाद जो नंबर 9 पर हम इसको एडिशन ऐड भी कर सकते हैं कि हम 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो जब हम 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें वहाँ पर उनका जो सम है वो पॉजिटिव मिलता है। और जब हम 2 नेगेटिव नंबर्स को 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हम जब हम सम करते हैं तो उनका जो सम है वो नेगेटिव आता है। इंटीजर्स की सबसे खास बात ये है कि हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और हमारी जो डेली लाइफ है तो हम उनको उसमें यूज करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर स्लाइड में मैंने अपने आप को बता सकती हूँ, जैसे यहाँ पर सी लेवल की है, सी लेवल एक एग्जांपल है इसकी। तो हम क्या देखते हैं, व्हेन एवर यू गो यू आर आइदर बिलो और अबोव सी लेवल। जब भी हम समुद्री सतह से ऊपर की तरफ जाएं या फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं, हम देखते हैं कि सी लेवल से अबोव जो लेते हैं हम वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं एंड टुवर्ड्स जब सबमरीन की तरफ हम लेते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इसकी इंटीजर्स की। उसके बाद है टेम्परेचर।
तो जैसे हम बात करें डे टाइम में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो प्लस में चला जाता है, और रात में ठंड हो जाती है तो वो फिर डाउन हो जाता है, माइनस में चला जाता है। इसी तरह स्पीड लिमिट होती है जब हम ड्राइव करते हैं, तो जब अगर कोई रश ड्राइव करता है तो तेज गाड़ी चलाता है, तो उससे वो भी एक एग्जांपल है कि उससे लॉस होता है हमारा। हम जब रश ड्राइव करते हैं तो हमें फाइन हो जाता है, तो वो फाइन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। एंड जब अगर कोई रश ड्राइविंग नहीं करेगा, वो स्लोली आराम से रूल्स को फॉलो करके ड्राइव करेगा, तो वो पॉजिटिव में जाएगा। इसी तरह एक गेम है गुल्फ, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक पार होता है गेम में, और ये जो एग्जाम्पल है ये बाकी एग्जाम्पल से थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि वहां पर जब बिलो पार होता है तो -2 होता है, एंड विच इज गुड। अगर अबो पार होगा तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन विच इज बैड। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर भी कंसेप्ट वही है इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का। देन उसके बाद है म्यूजिक। म्यूजिक में भी इसका मेन रोल है। म्यूजिक में क्या होता है कि हमारे पास अगर 50 टॉप सॉन्ग्स होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जिसको पॉइंट्स दिए जाते हैं तो उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जो सबसे कम जिसको पॉइंट मिलते हैं तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल है मनी। तो क्या होता है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री की करेंसी अलग है, रूपी है। किसी और कंट्री में जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट करेंसी होती है। तो यहाँ की करेंसी का जो वैल्यू होती है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज की जो करेंसी होगी वो या फिर ज्यादा होगी या फिर कम होगी। तो वहां पर अगर यहाँ का बंदा किसी और कंट्री में जाएगा तो उसको वहां पर अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो कभी कभार वो फिर माइनस में भी जाती है, कभी कभार वो प्लस में भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की करेंसी क्या है। फिर उसके बाद है एंड लास्ट एग्जांपल है इसकी फ्लोर इन बिल्डिंग। तो फ्लोर्स होते हैं बिल्डिंग में। अगर एक बंदा जो है वो एक फ्लोर पर है और एक बंदा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, तो हम बता सकते हैं कि जो टॉप फ्लोर पर थर्ड फ्लोर पर है उसको हम पॉजिटिव बता सकते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर में है उसको हम नेगेटिव बता सकते हैं। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हम अपनी क्लास में भी बताते हैं बच्चों को। इस तरह से हम समझाते हैं उनको इंटीजर्स क्या होता है। और मेरी पहली प्रेजेंटेशन है इसलिए मुझसे बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, तो प्लीज आप इनको नजरअंदाज कीजिएगा। चलिए, थैंक यू नहीमा। आपका पहला प्रेजेंटेशन था, आपने काफी एफर्ट अपने तरफ से लगाए। जी सर। और गलती, और जहां हम सीखने और सिखाने की बात करते हैं उसमें गलती जो वर्ड है इसका कोई स्थान ही नहीं है। तो ये अपने मन से निकाल लें। आपने प्रेजेंट किया, बेहतरीन किया। अब बाकी जो सुनने वाला है उसके ऊपर है कि उन्होंने क्या समझा नहीं समझा। आपने अपने तरफ से बेस देने की कोशिश की, ये अच्छी चीज थी। यदि आप कंफर्ट जोन में हो तो चूंकि मेरे ख्याल से आप अंतिम हैं, तो शुरुआत मैं ही करूंगा आपसे प्रश्न पूछने की। कोई बात नहीं सर, आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मैं कैमरा ऑन कर लूं कि हम दोनों एक दूसरे को देख लें। आप भी अपना कैमरा ऑन कर ले, देखो ये नहीं बात। मेरे ख्याल से मैं ये प्रेजेंटेशन बंद कर देता हूँ। तो आप कहाँ पर पढ़ाती हैं? जी मैं कुपवाड़ा से हूँ, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है न्यू लाइट पब्लिक स्कूल। अच्छा, ठंड पड़ रही है क्या कश्मीर में? स्वेटर पहन के लगता है सनी भी बैठा होगा। जी सर, यहाँ पर बहुत ठंड हो गई है। Anyway, कश्मीर में ठंड नहीं होगी तो कहाँ होगी? हाँ, किसी ने कुछ लिखा है मेरे ख्याल से। हाँ चलिए नईमा,
दो चार, चूंकि आपने स्टार्ट ही हिस्ट्री से कर दी इसलिए मैंने कहा मैं स्टार्ट करता हूँ। इंटीजर्स की के साथ साथ आपने पहले मैं इंटीजर्स पे आऊँ उसके पहले आपने उसमें नंबर लाइन की बात करी है। तो नंबर लाइन के बारे में आप की हिस्ट्री के बारे में आप क्या जानती हैं? नंबर लाइन कब इंट्रोड्यूस हुआ होगा? एक नंबर क्वेश्चन। लाइन जो है, हाँ बताएं। अ, डरे नहीं, ये तो ऐसे ही हिस्ट्री टॉपिक था तो मैंने कब पूछ लेता हूँ। जी जी सर, नंबर लाइन जो है एक ये हम ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस होती है और एक लाइन होती है जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं। नहीं, मैं चूंकि आपने स्टार्ट किया नंबर्स पे, इंटीजर्स में आपने बताया कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को हम बेसिकली सेट के अंदर रखते हैं इंक्लूडिंग 0। तो पॉजिटिव नंबर और हिंदुस्तान में नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, उनके बारे में कोई जानकारी है? या वर्ल्ड लेवल में यदि नेगेटिव नंबर की बात करें तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर दुनिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? नेगेटिव नंबर सर। अच्छा, नहीमा से अच्छा, ताहिर की बीवी। अच्छा, वेरी गुड ताहिर। अरे अच्छा, इसीलिए ताहिर भी। हाँ, गुड गुड गुड। चलो तब तो पूछना ऐसे भी बनता है। डरना नहीं है नहीमा। मुझे इंडिया का तो नहीं पता है लेकिन एक हिंदुस्तान का ही बता दीजिए। हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में सबसे पहले यदि रेफरेंस, जॉन, आई थिंक जॉन वेलिस, कुछ ऐसे नाम करके। जॉन वॉलिस ने क्या कहते हैं वो नंबर लाइन को हिंदुस्तान पे इंट्रोड्यूस किया, नंबर लाइन को, जो मैं पहला क्वेश्चन मेरा था। मेरा दूसरा क्वेश्चन था आपको कि हिंदुस्तान में निगेटिव नंबर के बारे में सबसे फर्स्ट रेफरेंस किन के साथ है? विलियम। इंडियन मैथमेटिशियंस के बारे में बताइए जिन्होंने निगेटिव नंबर को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया और 0 को इंट्रोड्यूस किया। आर्यभट्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने निगेटिव नंबर्स के बारे में बात करी? चलिए, ब्रह्मगुप्ता ने स्टार्ट की थी। और जो फर्स्ट जो आपने दिखाया कि लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं या सी लेवल में नीचे, तो ऊपर और नीचे वाला जो कंसेप्ट है वो इजिप्ट में पुराने जमाने में भी चलता था, जहां पर पॉजिटिव नंबर को पैर आगे करके और निगेटिव नंबर को पैर पीछे करके। जो आप अहमस पेपिरस की किताब देखें तो उसमें पॉजिटिव नंबर यूं है, मतलब पैर आगे बढ़ाया हुआ, और निगेटिव नंबर ऐसे है, मतलब एक पैर पीछे की है। वो 17th सेंचुरी बीसी में भी मिल जाएगा। निगेटिव नंबर हिंदुस्तान में ब्रह्मगुप्ता ने स्टार्ट किया 650s में। चलिए, फर्स्ट प्रेजेंटेशन था तो ज्यादा कुछ नहीं। हिस्ट्री थोड़ा सा जो आपने स्टार्ट किया क्रॉनिकर से, उनका बस सिर्फ कोट वाला मामला है। उन्होंने जो कोट किया था इंटीजर के बारे में, कोई खास कंट्रीब्यूशन उनका निगेटिव इंटीजर्स में है नहीं। जिनका आपने शुरुआत में इसका जो इंटीजर्स का था, हाँ, इंटीजर का कोट उनका था, लेकिन नंबर थ्योरी में उनका इंटीजर से रिलेटेड कोई इलिप्टिक इंटीग्रेशन में उनका ज्यादा योगदान रहा है। चलिए, थैंक यू नईमा। अब मेरे ख्याल से यदि सनी शेयर मुझे कर दो हिमाली मैम का, तो मैं थोड़ा सा उनसे, मैंने आपको पीडीएफ पीपीटी भेजा सर उनका, वो आपके व्हाट्सएप पे देखो जरा। अच्छा, हाँ, बस एक सेकेंड। हाँ, मैं शेयर कर लेता हूँ।
हिमाली मैम। जी सर। जी जी जी, आपका प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस में ज्यादा मेरी हाथ अच्छी नहीं है, तो मैं ज्यादा भक्ति मैम इसमें भी हैं दिमाग सर नहीं साथ में, लगाऊंगा, लेकिन यदि वो पूछें तो। भक्ति मैम साइंस की फील्ड से, भक्ति मैम ने सुना अगर यदि उसको, भक्ति मैम सुना था आपने एमली मैम का टॉपिक? जी 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 सर, बिल्कुल सुना था, सबको सुना बहुत अच्छे से सर। तो सर आप उनको भक्ति मैम को हाँ, वो करें कि वो कुछ। नहीं, हाँ, पहले तो सर भक्ति मैम, पूछ लेते सर। नहीं नहीं, मेरा तो कुछ नहीं मैम। आपने मॉटले मेथड के बारे में बात की, तो थोड़ा सा हमें ये समझा दीजिए ये मेथड क्या है कि। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हूँ और हमारे एक क्लास में संख्या जो है बच्चों की वो बहुत ज्यादा है, तो 70 स्टूडेंट पर टीचर ये संख्या है। तो शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुई नहीं, तो तब से मैंने ये वर्कआउट शुरू किया कि क्या कमी रह गई है इस क्लास में और क्या कमी रह गई है क्लासरूम एक्टिविटी में, कि क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी 2 डायमेंशनल पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, वो साइंस में बहुत यूज होती है। फिर उसके बाद मैंने उसे कलर्ड डायग्राम से रिप्लेस करके मॉडल्स भी रिप्लेस किया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कि जिनको शायद सिर्फ एक्टिविटी से समझ में आए या फिर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से समझ आए, तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने क्लासरूम में इंक्लूड किया। तो इसीलिए मैंने मेथड के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा मेथड है। हाँ, मैं उसी के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि मैंने इतनी सारी मेथड्स क्लासरूम में 1 बाय 1 इंक्लूड करनी शुरू कर दी। तो उसकी वजह से क्लासरूम एक्टिविटी जो थी वो एकदम परिपूर्ण हो गई कि मतलब कि जो लोएस्ट क्षमता वाला जो बच्चा है वो भी वो कंसेप्ट को समझ पा रहा था। इसीलिए मैंने इस जो मेथड का नाम जो है वो मॉटले मेथड रखा है, क्योंकि मॉटले का मतलब ही है आपने कि रखा है, वही मैंने सोचा हाँ था ये। जी, कि मॉटले का मतलब ही है कि बहुत सारे पिक्चर्स या बहुत सारी वस्तुएं एक होकर एक बहुत सुंदर आकृति बनती है या एक बहुत सुंदर एक दृश्य बनता है। तो ये मॉटले का एक मीनिंग है। तो इसीलिए मैंने इस मेथड का नाम ही मॉटले मेथड मैंने खुद रखा है और मैं बहुत सालों से इसके ऊपर वर्कआउट कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंटली मेथड जब क्लासरूम में लेके जाती है, जो कि ये टाइम काफी कंज्यूमिंग वाला है मसला, तो आपके प्रिंसिपल्स के तरफ से परमिशन मिल जाती है इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा होते ही हैं साइंस एक्सपेरिमेंट या साइंस के लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए, और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में जुड़ी रहती हूँ जैसे आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करके भी बच्चों को ये बातें पहुंचाऊं। तो और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ALP प्रोग्राम करके इंक्लूड हुआ था लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के कुछ 2-3 साल पहले। तो ALP के अंडर जो भी वीक बच्चा है कि मतलब जो बच्चा पढ़ाई में वीक है, जिनको समझ में नहीं आता है, तो उस बच्चे को आप स्पेशली एक्स्ट्रा क्लास एक ट्यूटर रखिए। मतलब एक आध दो बच्चों की तो बात में समझ गया, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने में, डिजाइनिंग करने में जितना टाइम कंज्यूम होगा, क्या उसका सिलेबस के ऊपर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है और आपके प्रिंसिपल्स या आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको कितना फ्री हैंड देता है इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए? क्योंकि सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में काम करती हूँ, इसीलिए मुझे फुल फ्रीडम दी जाती है कि मैम आप अपना क्लास है, आप अपने तरीके से हैंडल करिए। प्राइवेट स्कूल में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उनके बहुत सारे नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं। प्राइवेट स्कूल में ज्यादा इस तरह की एक्टिविटियां होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये है कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, रिजल्ट का क्या असर पड़ेगा, बहुत हम लोग सारे गवर्नमेंट सेटअप वाले मेरे दोनों जगह पे मैंने काम किया है। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा काम किया है, बट मैंने जो देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा हमारे यहाँ ज्यादा फ्रीडम दी जाती है कि टीचर को जिस तरह से कंडक्ट करना है क्लासरूम वो कंडक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हो जाता है
हो जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं 12:30 बजे हमारी स्कूल शुरू होती है, मैं 11:30 बजे मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ और मेरी सारी तैयारियां हो जाती है। मैंने बहुत सालों से मैं टीचिंग एड्स बना बना के पूरा एक अभी कबर्ड भर गया है। अच्छा, मतलब आप पहले पहुंच जाती हैं ये सब तैयारी करने की। Yes. अच्छा, अगर आप मैं- पैशनेट हो, मुझे तो जल्दी रहती है कि मैं कब पहुंचूं। ठाकुर सर, अभी चलाला में टीचर्स का एक ट्रेनिंग रखा था, डॉक्टर हिमाली बेन का, बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया था इसने। अभी मैं तो इसलिए क्योंकि मेरा 12:30 का होता है तो मैं 12:45 में खुद ही निकलता हूँ। नहीं, आप महान आदमी है, आपकी बात नहीं सोचिए, लेकिन हमको तो मेहनत करनी है। और निराली बेन, हेमाली बेन ने जो काम किया वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग किया, आज भी टीचर याद करते हैं कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। और 2 घंटे तक लगातार ट्रेनिंग अच्छा चलाया चलाला में। और दूसरा बता दूं कि 10-11 दिसंबर को हम स्टेट कन्वेंशन कर रहे हैं गुजरात का मैथ्स का, तो आप सब लोगों को भी आना पड़ेगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अरे बिल्कुल, बड़ी अच्छी आवाज है। जी ठाकुर सर को आप मैं बता दूं कि मैं 10 और वेजिटेरियन 11 दिसंबर हमारा ना वो मैंने स्टेट आपका सुन लिया था, वेजिटेरियन है। यस, एंड मैं खुद पढ़ाने में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई टीचर ने बुचर शॉप जाकर खुद कोई ऑर्गन, किसी एनिमल का ऑर्गन एक्चुअली साइंस क्लब एक्टिविटी में कंडक्ट करने के लिए वो स्कूल लाए हैं, वो खुद डाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं तो यही सोच रही थी कि कब मैं डाइसेक्शन क्लासरूम में इंक्लूड करूं। अब 12th स्टैंडर्ड तक डाइसेक्शन अलाउड नहीं है, जो मैंने डाइसेक्शन किए थे वो अलाउड नहीं है, क्योंकि डाइसेक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी स्पेसिमेन भी मिलते नहीं है, एंड मुंबई में तो इसकी बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, बच्चे हमारे यहाँ साधारण फैमिली से आते हैं, अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तो क्यों ना बच्चों में ये चाहत होनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूं या मैं पैरामेडिकल कोई फील्ड सिलेक्ट करूं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारे बच्चे अभी नीट दे रहे हैं। चलिए, बस मुझे वो मेथड का नाम मैंने नहीं सुना था, इसलिए मैं आपको बस सिर्फ पूछना चाह रहा था। भक्ति मैम पूछना है कुछ, या कुलदीप सर कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? अरे कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी नमस्कार। हाँ, साइंस वाले लोग तो है, हमें तो कुछ आता ही नहीं। टंडन जी, आप पार्टिसिपेट को क्या दे रहेंगे, क्या देंगे? आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं चलेगा, इतनी मेहनत किया है, आशीर्वाद पे नहीं काम चलता। बहुत अच्छा, एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट दो सबको, क्योंकि कम से कम इनको सर्टिफिकेट से भविष्य में कुछ मिल जाए। सर्टिफिकेट्स देंगे सर, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जरूर देंगे। हाँ, और कितने टोटल पार्टिसिपेट कितने थे सर? पेपर प्रेजेंटेशन का और काउंट इसका तो तो नहीं 23 किया? रजिस्टर्ड थे, अभी आए 4 ही, और मुझे लगता है 4 ही आएंगे, बाकी भाग गए। तो चार एक्सटेम्पोर स्टार्ट कर दो फिर। 4 को एक मेडल दे दो। एक्सटेम्पोर सब काम किया है। एक्सटेम्पोर